BBC नेटवर्क ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਪਲ ਸਹਿਗਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਵੀ ਨੇ। ਰੂਪਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਵਾਟਸ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ दैट ਵਾਇਲੈਂਸ? So first of all, thank you so much for inviting me here. You're welcome. यहाँ ऐसा हो जाता है कि जो हमारी कम्युनिटी आती है, वही पंजाब में से ले लो या गुजरात से ले लो या कहीं से भी ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस वो ऐसी चीज़ है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसका कोई कल्चर नहीं होता। तो ये प्रेवलेंस हमारे इंडियन कम्युनिटी में है। हमारे इंडियन कम्युनिटी में हम अभी कहते हैं हम बहुत एजुकेटेड है, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम औरतों को बहुत समझते हैं, हम माँ बहनों को इज्जत देते हैं, पर अभी भी ये सब कहना है। और आप देख लो हमारी जो भी नेशनल टीवी चैनल्स आती है, जो डेली सोप्स आते, दे आर बेसिकली ऑन अ वुमेन्स सिचुएशन। वो क्यों है? क्योंकि आज के समाज में यही होता है। नॉर्मली जो आप देखते हो टीवी वगैरह में, वो रोज का जो आसपास हमारे होता है वही होता है। So real life is becoming dramatic. Real life is becoming dramatic and it's coming on a paper, yet हम कुछ सीखते नहीं है उससे। तो बात यहाँ ये है कि सीखने की, हम पढ़े लिखे गवार हैं, है ना। हमारे जीवन में ऐसे कुछ एपिसोड्स हो जाते हैं जो जहाँ पढ़े लिखे लोग भी ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जो उनका बोलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, तो उनके वो थोड़े से पुल बैक हो जाते हैं कि हम इस सिचुएशन में होके भी हमने हमारे के मेरे साथ कैसे हो गया, हमारे साथ ये कैसे हो गया, हम किसको कैसे बोले, हमें एम्बैरेसमेंट होती है। हमारा फैमिली जो वेल टू डू है वो क्या कहेंगे, हमारे जो समाज है, सोसाइटी है, सोशल स्टेटस बैलेंस करने के लिए वो अपने आप पे सह लेते हैं। बट इज दैट द राइट वे टू गो? और वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको समाज में हेल्प नहीं मिलती, वो बोल नहीं सकते, वो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं होती है उनकी, और फैमिली बैकग्राउंड में जो सपोर्ट ना मिले ना, तो वो बहुत ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप जैसे लोगों को देखते हो, जितना के केस थोड़े को आउंदे ने, ਉਹਦੇ ਚ एज वाइज डिफरेंस है कि यंग लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं या मिडिल एज या बुजुर्ग औरतां भी हैगी ਉਹਨਾਂ ਚ? इसमें वैराइटीज ऑफ पीपल होते हैं, पर यूजुअली यंगर्स ज्यादा होते हैं। एज दे जिनसे उम्मीद है कि वो शायद सियाने हो। हाँ, क्योंकि जो से एज हो जाती है तो थोड़े से मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, एंड देन दे हैव अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो यंगर होते हैं उनमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो उनको समझ नहीं आता कहाँ जाए। एक तो दे आर ग्रोइंग, प्लस दे आर गोइंग थ्रू द मेंटल टॉर्चर एंड अ फिजिकल टॉर्चर। To put it all together, they don't know what to do. तो basically mainly is a younger crowd, I would say। हमारे इंडिया में शादियाँ जल्दी होती है, तो यहाँ बहुत सारी अरेंज मैरिजेस में होती है, लव मैरिजेस में होती है, स्पेशली लव मैरिजेस में ज्यादा होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि लव मैरिज में तो उनको फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता है, so they're on their own। And if they're immature तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरी अपनी लव मैरिज है, ठीक है, और लव मैरिज में ऐसा होता है कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है,
But there was a time when your family says, I'm going to say, मैं आपकी शादी यहाँ कराती हूँ, यहाँ कराती हूँ, वहाँ कराती हूँ, तो आपको ये लगता है आपकी फैमिली का स्ट्रेंथ मिलेगा. लेकिन when you do a love marriage, there is no support. अगर कुछ होता है, तुमने किया है, तुम भुगतो. तो ऐसे दरवाजे बंद हो जाते हैं. तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, मेंटली वो टॉर्चर हो जाते हैं. वो कहाँ जाए? ना दोस्तों को कह सकता है क्योंकि उनको एम्बैरेसमेंट होती है. आपके तक वो लोग कैसे पहुंचते हैं और डू यू ट्राई टू रीच देम? नहीं, मेरा क्या होता है कि कम्युनिटी में आई ट्राई एंड स्प्रेड अवेयरनेस विद पुटिंग सम फ्लायर्स आउट. दिस इज वन ऑफ द मीडियम दैट आई एम ट्राइंग टू रीच आउट. फ्लायर्स थ्रू इसलिए कि अगर किसी को अनोनिमसली मुझे रीच करना है तो दे कैन रीच मी. पहली बात, इन्फॉर्मेशन आप प्राइवेट रखती हो? मैं उनकी एब्सोल्युटली प्राइवेट रखती हूँ क्योंकि वो उनकी इतनी फियर होती है लाइफ के बारे में कि उनको मैं उस लेवल पे नहीं ले जा सकती कि दे आर एक्सपोज्ड. देयर इज नो रीजन टू बी टॉर्चरिंग देम मोर देन व्हाट दे आर करंटली एक्सपोज्ड टू द टॉर्चर इमोशनली एंड फिजिकली. तो एब्सोल्युटली इट्स अनोनिमस इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड. नो वन नीड्स टू नो योर बिजनेस. इट्स बिटवीन मी एंड देम. उनकी परमिशन है तो मैं नेक्स्ट लेवल तक ले जाती हूँ. उनको जिस डायरेक्शन में उनको हेल्प चाहिए उस लेवल पे ले जाती हूँ. either they are physically abused, mentally abused, they need physical attention, they need a mental attention. If they have a child, do they need a child care? Is there child that needs additional help due to the violence? Do they need to place in a different environment? All that type of scenario. तो ऐसी सिचुएशन भी आती है कि किसी को डॉक्टर की मदद की जरूरत है या पुलिस की मदद की जरूरत है? एब्सोल्युटली. ऐसी सिचुएशन में पुलिस एंड डॉक्टर की हैंड इन हैंड जरूरत होती है, पर हमारे लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं जाएंगे किसी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ी बात, लोग क्या कहेंगे. दे डोंट पुट देमसेल्फ फर्स्ट. तो इसमें वो खुद ही अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहते हैं. भगवान ने, गॉड ने, जो भी आप ऊपर वाले को मानते हो, उन्होंने एक मौका दिया है. वो भी हम डर के रहते हैं. तो ऐसे सिचुएशन भी हैं कि लोग इंडिया में हैं, इदां दे बड़े केस आंदे ने साडी कम्युनिटी दे विच जिहदे विच ਅਸੀਂ फ्रॉड एनआरआई मैरिजेस दी गल देखदे हां. लोग ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं हुई. तो इदां दे केसेस भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं? बहुत आते हैं. मैंने पीछे रिसर्च करा था तो हमारे इंडियन काउंसलेट में कितनी एप्लीकेशंस आई है टू हेल्प देम रेस्क्यू फ्रॉम सच सिनेरियोस. We have when they're living in India. They're living in India and either they've been sent back to India or they're living here in a very miserable condition. उनका पासपोर्ट ले लिया जाता होता है, उनका सब इंफॉर्मेशन ले ली जाती होती है, वो कुछ कर नहीं सकते, वो हैंडीकैप हो जाते हैं. तो सिचुएशन में क्या हो सकता है? तो इन सिचुएशन में हम उनको रिसोर्सेज लाके देते हैं. किस टाइप ऑफ सिचुएशन है उस हिसाब से उनको रिसोर्स ला. डू दे नीड इमिग्रेशन हेल्प? Do they need mental assistance? Do they need to involve a police authority or an authority? Or do they need a child care? और जो भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से उनकी वो सिचुएशन की नीड को मीट करने की कोशिश करते हैं कि they don't need to feel they're alone. इस समाज में यही एक बड़ी बात है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते. दे फील लेफ्ट आउट एंड अलोन एंड मेंटली डिप्रेस. और इस सिचुएशन में ये नहीं है सिर्फ अकेली औरतें होते. मेंस आर आल्सो इक्वली सफरिंग. सम ऑफ द मेंस आर आल्सो इक्वली सफरिंग. आपने जो रिसर्च की है उसमें कुछ ये वेरिएबल है कि कितना परसेंट है? Obviously the ladies are on a higher percentage but the men are on a lower percentage, but there are men also in this similar category. इनको यहाँ बुला के ब्लैकमेल किया जाता है. उनको बुला के हाँ कि तुमने यहाँ पे सिर्फ ये करना है, वो करना है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. नहीं तो ग्रीन कार्ड नहीं दिलवाएंगे बिकॉज जो ग्रीन कार्ड का जो ग्रेस पीरियड टाइम होता है, पीपल नो कि इन बिटवीन दे कैन नॉट बी even after citizenship. After citizenship, so let's say about 10-12 years कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस सिचुएशंस हो जाती है तो दे ऑल फील कि अभी वो वापस जाएंगे. और जो लोग इंडिया से आते हैं, मैन या वुमन जो भी कह लो, मोस्ट ऑफ देम दे हैव लॉट एट स्टेक. दे हैव लॉट एट स्टेक. उनके फैमिली ने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा के फाइनेंशियली खर्चे होते या आने के, प्लस शादी के खर्चे होते, बहुत कुछ खर्चे होते. 40-50 लाख आम तौर पे आजकल खर्चा हो रहा है. और ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਉਹ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫੇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰੂਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ मिलती ने? ऐसी सिचुएशन बहुत मिलती है कि जो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ आते हैं तो उनका मेन वहाँ से मैंने ऐसे केसेस सुने हुए हैं कि वो उसी एजुकेटेड लेडीज को टारगेट करते हैं जो जिनका लेवल PhD या हाई लेवल पे होता है कि यहाँ आके उनको काम करवाएंगे। पर यहाँ की सिचुएशन थोड़ी बदल भी जाती है बिकॉज दे सी कि ये जो लेडी आई हुई है ये वोकल है या स्मार्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए सप्रेस करा जाता होता है, सप्रेस करा जाता है कि नहीं तुम इसमें नहीं काम करोगी, तुम उसमें काम करोगी, मेरे हिसाब से काम करोगी, तुम यहाँ नहीं करोगी, वहाँ नहीं करोगी, तो वो बंदा सप्रेस हो जाता है। फैमिली बैकग्राउंड उनका जो होता है ना, उनको मेंटेन करना होता है, उनका स्टेटस मेंटेन करना होता है कि हम तो अपनी औरतों को ऐसे ही रखते हैं, पढ़ी लिखी कुछ भी हो हम तो ऐसे ही रखते हैं। तो वो दिखाने के लिए पढ़े लिखे लोगों को भी एक्सप्रेस किया जाता है। और जो नहीं पढ़े लिखे उन लोगों में सिचुएशन ज्यादा खतरनाक नहीं है बिकॉज़ दे आर नॉट इवन अवेयर कहां जाए। उनको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो बेचारे फाइनेंशियली बहुत लो होते हैं, फाइनेंशियली लेवल उनकी बहुत लो होती है, उनके माँ बाप वहाँ पे गरीब होते हैं तो वहाँ से वो कोई हेल्प नहीं मंगवा सकते, फोन एक्सेस नहीं कर सकते, कभी कभार तो फोन भी ले लिया जाता है। इन लोगों के पास ना फोन लिया जाता है ना बातें करने देते हैं। और मैंने कुछ ऐसी चीज देखी हुई कि कुछ एरियाज में रिलेटिव्स में अंदर अरेंज मैरिज कराते तो बैकग्राउंड उनकी इंटरनली कनेक्टेड होती है तो उनको प्रेशर बोथ साइड से आता है, पेरेंट की साइड से एंड इन लॉज की साइड से। लोगों को कैसे पता चले कि वो कहां से हेल्प लें? तो पहली बात है उन्होंने किसी को बोलना है, किसी को बताना है, किसी को ट्रस्ट करना है। पहली बात है ट्रस्ट करने की बहुत बड़ी बात है, किससे आप ट्रस्ट करें, कहां से आप शुरू करें। तो समवन लाइक मी और समवन समवन योर फ्रेंड्स, आप गुरुद्वारा में जाते हो, वहां किसी से मिल सकते हो क्योंकि वहां पे आपकी सिचुएशन अनोनिमस कोई सुन सकता है, या मेरे जैसे किसी कंसल्टिंग मेरे साथ आओ बैठो, हम ऐसे बात कर सकते कि जैसे आप आपस में सहेलियां बातें करते हैं और एक दूसरे की दुख सुख बांट रहे हैं। माई गोल इज टू गेट यू टू द नेक्स्ट लेवल कि आपको क्या तकलीफ है, हम कहाँ ले जाए। तो नेक्स्ट लेवल में आप कहाँ तकलीफ? पहली बात कि मैं उनको चार्ज नहीं करती हूँ। हाँ ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट कि ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਪਾ ਸਹਿਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। फाइनेंशियल बर्डन इज द बिगेस्ट बर्डन फॉर पीपल क्योंकि वो अगर वो सबसे पहले ये सोचेंगे मैं कहाँ जाऊं, एक तो ये है, दूसरी बात कितना कॉस्ट करेगा, लॉयर्स के नाम से डरते हैं। अगर आप कोई बीमार होता है ना, डॉक्टर के पास जाने से डरता है सबसे पहले, पता नहीं क्या निकलेगा, कितना खर्चा होगा, क्या निकलेगा या कितना खर्चा होएगा। तो ये आपको मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि माय कंसल्टेशन हियर विथ यू इज फ्री। और मेरा जॉब या मेरा गोल या मेरा पैशन कह लो, ये मेरा जॉब नहीं है, मुझे कोई पे नहीं करता है, ये मेरा पैशन है कि मैं कैसे किसी की मदद करूं कि मैं आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊं, आपकी क्या सिचुएशन है वो सुन लूं, उसके बाद कौन से एरिया में आपको मैं पहुंचा सकती हूँ, इंडिया में या यहाँ पे। तो जैसे आपने पूछा, इंडिया में मेरे पास सोर्सेस है, आई वर्क इन प्लेसेस वेयर देयर इज रिटायर्ड जजेस, इनके पास वैस्ट एक्सपीरियंस होता है, 70 समथिंग इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, उनके पास इतने प्रैक्टिकल केसेस होते हैं। सो यू हैव जजेस, यू हैव अटॉर्नीज, यू हैव एडवोकेट्स, यू हैव कंसल्टेंट्स, यू हैव mediators, if you're going through emotional drama, there is a medical team out there, so I can put you in a various different levels here and in India में भी। yes, absolutely। ओके, तो अब मान लीजिए किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो यहाँ आए हैं, अभी 15 दिन हुए शादी की और वायलेंस शुरू हो गई है, तो उस सिचुएशन में शुड दे कंसल्ट पीपल इन इंडिया और या यहाँ करें? So they fall in certain grace period, so due to that it's a very very fast moving process। अगर वो वेट कर सकते हैं तो आफ्टर अ व्हाइल वी कैन स्टार्ट प्रोसेस हियर, पर इमीडिएटली अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो दैट प्रोसेस हैज टू गो फ्रॉम इंडिया, ओके, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ
ਜਾਂ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। एब्सोल्युटली ऐसे मामले में ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है जहाँ पे प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपने किसी को बताया तो आप डिपोर्ट हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे सिचुएशन नहीं है। सबसे एब्सोल्युटली सबसे पहले आपका प्रोटेक्शन इज नीडेड। द रीजन यू हियर और डिपेंडिंग ऑन whichever केस यू आर हियर, जो भी वीजा स्टेटस है जो भी है, बट यू आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एंड सो वी नीड टू केटर टू द ह्यूमन फर्स्ट, ह्यूमंस नीड। ਸੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, 100 ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਰੂਪਲ, ਅਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। सो मेंस का ऐसा होता है कि लेडीज की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सभी सिंपैथी ज्यादा करते हैं, एम्पैथाइज ज्यादा करते, सिंपैथाइज ज्यादा करते, बेचारी है, ये है, वो है, बेचारी के साथ ही ऐसा हो जाता है। पर मेंस के केस में लोग बिलीव नहीं करते हैं। हाँ। तो उनके साथ ट्रस्ट इश्यू होता है कि हम कैसे माने ये सच है। हाँ, ओके। ये झूठ बोल रहे हैं। ओके। तो अगर वो आके बोल रहा है कि मेरे को मारा पीटा जा रहा है, कौन मानेगा? तो मेरे पास ऐसी सिचुएशन है जहां बीवियां डंडा लेके, झाड़ू लेके हस्बैंड को मारती है और वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? एक तो उनके पेरेंट्स की इतनी अपब्रिंगिंग है कि वो अपने बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहते, या दूसरी उनकी ये बात होती है कि मैं किस तरह कुछ करूं, मतलब बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी को जाके ये कैसे कहूं मेरी बीवी ने मारा, मेरे इन लॉज ने मारा। नहीं, वो इनके, या फिर वो लीगल इश्यूज भी हैं, स्टेटस के इश्यूज भी हैं, ऑब्वियसली उनका कार्ड, ग्रीन कार्ड वगैरह के भी इश्यू है कि इस ग्रेस पीरियड के अंदर हो, मैं तुम्हें डिपोर्ट करा दूंगा इस वायलेंस केस में। तो वो क्या करें? अब सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਾ ਵਰਗਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ? एब्सोल्युटली यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली फॉर वुमेन, the violence itself affects everyone. It affects the men, women, children, parents and their friends and family. सबको अफेक्ट करता है। तो उनकी कंसल्टेशन भी आप करते हो, उनके लिए आप प्लान कर सकते हो? हाँ, so my like I said, I will start the process on getting you to the next level. You know, कहाँ पर आप अटके हुए हो, and getting you to the next level, and any type of case or any type of gender is not a problem here. Okay, एक NRI मैरिज फ्रॉड जो इशू बार बार उठ रहा है, जिसके बारे में मैंने बहुत सवाल आपसे पूछे हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग इस वजह से कंप्लेन नहीं लेके आते, अगर मैंने कंप्लेन कर दी फिर तो वो पक्का शादी जो करा के छोड़ चुका है वो लेके नहीं जाएगा। वो किस सिचुएशन में आके वो फाइनली पहुंचे कंप्लेन करने के लिए? कैसे वो इंसाफ ढूंढे जब उनको अंदर डर है कि मेरा स्टेटस शायद बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा कंप्लेन करने पे? पहले तो डर निकाल ले, कहीं से तो बात करनी है, किसी को तो भरोसा करना है। सो यू नीड टू फाइंड द राइट चैनल, द राइट प्रोसेस, और हर बात को डर को लेकर नहीं बैठे रहते। अगर आपको ये सबसे बड़ी बात खाई जा रही है तो किसी एक प्रोफेशनल बंदे के पास जाए या ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ जाए और वहीं से शुरू करें। अगर 3-4 साल से शादी करके लोग जा चुके हैं और कभी लेके ही नहीं गए इंडिया से, तो क्या वो राइट अवे आपके पास कंप्लेन करने पहुंच सकते हैं? आप उनके लिए यहाँ से भी चेक करवा सकते हो कि सिचुएशन क्या है? जो यहाँ से, आपका क्वेश्चन है, जो यहाँ से गया, शादी करके आ गया, वापस वाइफ हस्बैंड को नहीं लाए, या अच्छा, तो उनका केस तो ऑब्वियसली इंडिया में ही पड़ता है। सो इन दैट केस डेफिनेटली वी कैन हेल्प देम आउट देयर। आई एम अज्यूमिंग ये इंडिया में ही होंगे, ये जो इंडिविजुअल्स होंगे इंडिया में होंगे ना, तो मेरा कंसल्टेशन उनको यही होएगा कि मैं उनको राइट चैनल्स में इंडिया में लगाऊं कि यहाँ जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी, जो भी स्पॉन्सरिंग इंडिविजुअल है, उसका प्रोसेस कहाँ पर है, कहाँ अटका हुआ है। हाँ, एब्सोल्युटली आई कैन ट्राई एंड हेल्प देम आउट हियर कि कहाँ अटका हुआ है, क्या रीजंस है। ओके, सो एट द एंड ऑफ द एपिसोड जो लोग किसी तरह की वायलेंस का शिकार हैं उनको मैसेज क्या देना चाहते हैं, जो स्पेशली डरे हुए हैं कि बात करेंगे तो शायद बहुत खतरनाक माहौल हो जाएगा हमारे लिए? You have gone through all those things, right? मैं दसवां ज़्यादा डिटेल च नहीं ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੂਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰਮ दैट, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। पहले तो ये मत सोचो कि हेल्प नहीं है, हेल्प है, और वन नीड्स टू हेल्प देमसेल्फ। अपने आप को पहले हेल्प करो,
फिर दूसरों को हेल्प करो। तो अपने आप को बिलीव करो कि मैं खड़े होना चाहती है या चाहता हूँ। जब आप खड़े होंगे तब दूसरा आपका हाथ पकड़ेगा, सोर्सेस मिल जाएंगे। तो अपने आप वो हिम्मत लाए कि मैं किस तरह से करूंगी, क्योंकि अपनी जिंदगी की वैल्यू अगर आप खुद नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। सो गिव योर सेल्फ दैट रिस्पेक्ट ऑन गेटिंग अप। अपने आप खड़े हो और फिर राइट टाइप ऑफ पीपल के साथ जाके हाथ मिलाओ। ओके, सो कंसल्टेशन अवेलेबल है उस वायलेंस ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਬਲੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਲ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੌ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਸਮਾਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰੂਪਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।